بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے ایک اللہ والی نیک عورت کا۔ ناظرین، ایک اللہ والی عورت جو اپنے پیٹ میں پال رہی تھی ایک سانپ کو، آخر کیوں اس کے بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے؟ کہا جاتا ہے ایک لڑکی تھی جو بہت ہی نیک پاکیزہ باحیا تھی، اپنے ماں باپ کی وہ اکلوتی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن سے بھی نوازا تھا اور اس کے اخلاق بہت اچھے تھے۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی لوگ اس کے عاشق تھے، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ ایک آدمی اس کے حسن کو دیکھ کر اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کے قریب ہونا چاہتا تھا اور پلاننگ کرتا کہ یہ لڑکی کسی طرح سے مجھے مل جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس لڑکی کی شادی کسی اور مسلمان لڑکے سے ہو گئی۔ وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ یہاں پر وہ ہندو لڑکا افسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھے نہ مل سکی، اگر یہ مجھے نہیں مل سکی تو یہ کسی کو بھی نہیں مل سکے گی۔ شادی تو اس کی ہو گئی ہے مگر میں اس کو خوش نہیں رہنے دوں گا۔ اور اس نے جنگل میں جا کر چلا کاٹنا شروع کر دیا۔ اس کے شوہر اور لڑکی پر کالا جادو کر دیا۔ کالا جادو کرنے کی وجہ سے اس کا شوہر اس لڑکی سے آنکھیں چرانے لگا اور شروع کے 5 سال تک اس کے یہاں کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ وہ لڑکی بہت پریشان تھی کہ شوہر اتنا بے پرواہ اور میرے یہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ پھر کسی کے کہنے پر اس نے روحانی علاج کروایا۔ بہت روحانی علاج کروانے کے بعد آخرکار ان کے گھر میں ایک خوبصورت سی بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بچی کو سب چاہتے تھے، لیکن شوہر اس بچی کے پاس بالکل بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ اس بات سے بھی دکھی تھی مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی۔ کم از کم گھر میں رحمت تو آئی۔ ایک نہ ایک دن باپ کے دل میں بیٹی کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب وہ بچی تقریباً 8 مہینے کی ہو گئی، ان دنوں ایک اللہ والا فقیر مانگنے کی غرض سے اس عورت کے گھر گیا۔ عورت نے ملازم سے کہا کہ اس فقیر کو خیرات دے کر روانہ کر دو، مگر وہ فقیر ضد کرنے لگا کہ میں گھر کی مالکن سے ملنا چاہتا ہوں، بہت ضروری کام ہے۔ حالانکہ وہ خاتون کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، باپردہ تھی، نہ جانے کیوں فقیر سے ملنے کے لیے دروازے تک آ گئی۔ وہ فقیر کہنے لگا کھانے کو روٹی دو۔ اس خاتون نے اس کو 3 روٹی اور سالن دیا۔ کھانے کے بعد وہ فقیر بولا بیٹی پانی نہیں پلاؤ گی؟ اس خاتون نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ پیتل کے بڑے گلاس میں پانی لے آؤ۔ اس فقیر نے جب گلاس لے کر پانی میں دیکھا، اس خاتون سے کہا پانی میں سانپ ہے۔ وہ حیران ہو گئی۔ اس فقیر نے کہا بیٹی آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ وہ حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ مجھ پر کون جادو کر سکتا ہے، کون میرا دشمن ہے؟ فقیر نے کہا آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے کہ آپ کی کوئی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی میں تمہاری بات کیسے مان لوں، میرے تو ایک بیٹی ہے، وہ اندر سو رہی ہے۔ فقیر نے کہا میری بات سچ ہے، تمہاری بیٹی سو نہیں رہی بلکہ مر گئی ہے، تم اندر جا کر خود دیکھ لو۔ وہ بہت پریشان ہوئی، دوڑتی ہوئی اندر آئی۔ اندر آ کر جب اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ سچ میں مری ہوئی پڑی تھی۔ واپس دروازے پر آئی، فقیر وہاں موجود نہیں تھا، غائب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ملازمہ کو فقیر کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا، لیکن وہ غائب ہو گیا تھا۔ شوہر کو بھی اس بات کی اطلاع دی گئی، سب لوگ حیران تھے۔ آخر بچی اچانک کیسے مر گئی اور وہ فقیر کون تھا جس نے بچی کی موت کی خبر دی؟ مگر صبر تو کرنا ہی تھا۔ وہ صابر اور شاکر خاتون اپنی بیٹی کی موت پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتی اور کہتی یا اللہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ مجھ سے خوشیاں روٹھ گئی ہیں۔ بہرحال اس بچی کے تقریباً 1 سال بعد اس کے گھر دوبارہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ بیٹی پہلی بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ خاتون اپنی بیٹی کو کسی کے سامنے نہیں لاتی تھی کہ کہیں اس کو کسی کی نظر نہیں لگ جائے۔ ایک بیٹی کو کھو چکی تھی، دوسری کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ جب وہ بچی 2 سال کی ہو گئی
गई तो वही फकीर दोबारा दरवाजे पर आया। मुलाजिमा उस फकीर को सदका खैरात देने लगी। उस फकीर को पहचान कर भागी हुई अंदर गई और मालकिन को बताया कि वही फकीर आया है जिसने आपकी बेटी की मौत की खबर बताई। वो खातून डर गई और उनको शक हुआ कि कहीं उनकी दूसरी बच्ची भी न मर जाए। भागकर बच्ची को देखा तो बच्ची आराम से सो रही थी। उस खातून ने सुकून का सांस लिया और मुलाजिमा से कहा कि उस फकीर को खाना देकर रुखसत कर दो। ऐसे ही किया गया। जाते वक्त वो फकीर मुलाजिमा से बोला कि उस घर की मालिकिन पर काला जादू किया गया है। इस घर की कोई औलाद जिंदा नहीं रहेगी। वो क्यों मेरी बात नहीं मान रही है? अपना इलाज करवाए। उसे बोलो किसी ने जादू किया है तुम पर। तुम कभी भी साहिबे औलाद नहीं हो सकती। मुलाजिमा ने यही बात आकर अपनी मालिकिन को बताई। पहले तो इस बात को नहीं मान रही थी, लेकिन फकीर ने यही बात कही तो वो ज़ारो कतार रोने लगी और मुलाजिमा घबरा गई। जल्दी जल्दी भागकर मालिक को बुलाकर लाई, यानी कि उसके शौहर को। जब वो घोड़े पर सवार होकर अपने घर आया, जैसे ही वो घोड़े से उतरा तो उसके घोड़े ने एक अजीब हरकत की। उसके घर के आंगन में घड़ा खोदने लगा। सब हैरानी से उसे देख रहे थे। आज इस घोड़े को क्या हो गया है और इसने घर में कब्र क्यों खोदी है? इतनी देर में उसकी बेटी कदमों से चलती हुई सहन की तरफ आई। उससे पहले कि कोई उसे रोकता, वो घोड़े के बनाए हुए घड़े में जा गिरी। सब दौड़ते हुए घड़े के पास आए। बेटी को जैसे ही निकाला तो वो मर चुकी थी। इस हादसे के बाद खातून को यकीन हो गया कि फकीर ठीक ही कहता था। उसने इस अमल के तोड़ने के लिए एक आमिल से राब्ता किया। उस आमिल के इलाज के दौरान इसकी एक और बेटी पैदा हुई। उसका शौहर और वो बहुत परेशान थे कि कहीं इनकी ये बेटी भी मर न जाए, लेकिन हुआ वही जिनका उन्हें डर था। एक दिन वो खातून अपने शौहर अपनी बेटी को लेकर किसी आमिल के पास जा रही थी कि अचानक से कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और उनकी कमसिन बेटी को उड़ा कर ले गई। वो देखते रह गए। उसने दूर आसमान पर ले जाके उस बेटी को नीचे फेंक दिया। जमीन पर आकर उसकी बेटी का पूरा जिस्म बिखर गया। माँ बाप तड़प तड़प कर रो रहे थे। आखिर हमारी बेटी को इस तरह कौन मारने वाला है? खातून हर वक्त अपनी औलाद के गम में रोती रहती थी, क्योंकि आंखों के सामने उसने अपनी बेटियों को मरते हुए देखा था। एक माँ की बर्दाश्त थी कि वो सब्र तहम्मुल से अल्लाह ताला के हुजूर अब तक सजदे कर रही थी। या अल्लाह, तेरी क्या राय है? क्या मसलिहत है? कौन हमारा दुश्मन है? ये राज क्यों नहीं खुलता? आमिल ने ये नहीं बताया कि काला जादू किसने किया है। उसका शौहर उससे पहले ही बेजार हो चुका था। कम अज कम उसकी बेटी के जरिए ही उसके करीब आता था। लेकिन जब 3 बेटियों की मौत वाक़ई हो गई, उसके घर वाले उसे उकसाने लगे कि बेटा तेरी बीवी मनहूस है, इससे कोई भी औलाद पैदा होती है तो मर जाती है। हमें बेटा चाहिए। इस खानदान का वाहिद चश्मो चिराग कोई तो होगा हमारी जायदाद का वारिस। इससे पैदा नहीं करो, अगर इसकी कोख से जन्म लिया तो मर जाएगा। तो दूसरी शादी कर ले। लोग उसके शौहर को उकसा रहे थे और उसका शौहर भी दूसरी शादी करने के लिए सोच रहा था कि एक दिन उसके घर पर उसी फकीर ने रोटी के लिए सदा दी कि कोई है कि इस भूखे फकीर को खाना खिलाए। मुलाजिमा ने दरवाजा खोला तो वही फकीर सामने मौजूद था। उस खातून को पता चला तो दौड़ी हुई दरवाजे पर आई और रोते हुए बोली, अब तू किसको लेने आया है? जब भी आता है मेरी औलाद ले जाता है। अब तो मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी गोद खाली है। क्या मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है? वो औरत रोती जा रही थी और फकीर से कहती जा रही थी। उस फकीर ने कहा, अगर मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अंदर आने दो। मुझे खास तुम्हारे काम के लिए भेजा गया है। उस खातून ने यकीन कर लिया और उस फकीर को घर के अंदर बुला लिया। फकीर पूरे घर में चक्कर काटने के बाद एक जगह बैठ गया और पानी मांगा। मुलाजिमा एक बर्तन में पानी ले आई। फकीर काफी देर तक वजीफा पढ़ता रहा, तस्बीह पढ़ते रहा, जिक्र इलाही करता रहा। फिर उसने कहा कि इस बर्तन में देखो क्या नजर आता है। जैसे ही उस खातून ने देखा तो एक काले रंग का सांप कुंडली मारे हुए बैठा था। वो चीख मार कर आगे हट गई। फकीर ने कहा, बेटी आप अपनी आंखों से देख लेना कि आप पर काला जादू किया गया है और उसी जादू के जरिए आपके पेट में काला सांप बिठा दिया गया है, जो आपके हर बच्चे
को मौत के घाट उतार देता है। उस खातून ने कहा कि मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। बेटी, यहाँ यही तो बात है कि खुशी आपको मिलती है लेकिन खुशी आपसे छीन ली जाती है। बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं, वही सांप है। आपको एक बात बताऊं, ये अमल किसने करवाया है? ये अमल एक हिंदू आमिल ने करवाया है। इस बस्तियों में रहने वाले बहुत से हिंदुओं में एक हिंदू आपके पीछे पड़ा हुआ है। उसने आपको देखा, शादी से पहले वो आपके हुस्न का दीवाना हो गया, पर आपकी शादी हो गई तो वो चला गया। तो उसने काले इल्म करवाने वाले आमिल के पास जाकर एक मंत्र सीखा। उसके बाद वो जंगल में जाकर 40 दिन तक वो मंत्र पढ़ता रहा। उसके बाद उसने आप पर और आपके शौहर पर जादू किया। इसी वजह से जो आपका शौहर बहुत ज्यादा आपसे मोहब्बत करने वाला था, वो आपसे नफरत करने लगा है। समझ रही हो ना मेरी बात? उस आदमी ने ऐसा अमल किया है तुम पर और तुम्हारे शौहर पर कि तुम औलाद का सुख नहीं देख पाओगी। अगर चाहती हो कि तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो तुम्हें एक सख्त बड़ी मुश्किल से गुजरना होगा। वो खातून अल्लाह की नेक बंदी थी। उसके दिल में कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि वो किसी के साथ बुरा करे, मगर उसके साथ बुरा हो रहा था। इसका मतलब अल्लाह ताला ने उसका इम्तिहान लिया, या कोई उसके पीछे है जो उसका दुश्मन है, जो उसे पता चल गया। तो वह हिम्मत खातून कहने लगी कि मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस गंदे इल्म को यहाँ से हटाना है। फकीर ने कहा, सोच लो, ये काम बहुत मुश्किल है। उसने कहा, मैं तैयार हूँ। उसने कहा, औलाद को जिंदा हासिल करने के लिए तुम्हें खुद अपने पेट से उस सांप को जन्म देना होगा, ताकि आइंदा आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो जाए और तुम्हारी औलाद ना मरे। पहले तो वो घबरा गई, लेकिन उसने वादा कर लिया था कि जो भी होगा मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने रब पर और उसकी जात पर पूरा यकीन है। वो इस अजीब व गरीब नाकाबिले यकीन काम को करने के लिए तैयार हो गई। फकीर ने कुछ अमल बताए थे जो सिर्फ उस खातून को ही करने थे। उसने सारी बात अपने शौहर को सुना दी। वो बहुत परेशान हुआ। उसने डांटा कि औलाद की खातिर इतना बड़ा खतरा मोल ले रही हो, सांप को अपने पेट में पालने के लिए तैयार हो। तुम्हें यकीन है कि वो फकीर सच कह रहा है? वो खातून कहने लगी कि वो अल्लाह ताला का भेजा हुआ खास फकीर है। मैं उस पर यकीन रखती हूँ। अब तक जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी और मेरी नजर के सामने हो रहा है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत उसी हिंदू आमिल ने डाली है। मैं इस अमल को कर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फकीर ने ये बात भी बताई थी कि सांप तुम्हारे पेट में मौजूद है, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है। जब तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी ये मेरा बच्चा है और मुझे इसे पैदा करना है, इस दुनिया में लाना है, फिर वो तुम्हारी बात को सुनेगा और तुम्हें किसी तरह उसे अपने पेट से बाहर निकालना है। ये बात तो वो समझ गई थी। फकीर ने उसे कुछ वज़ाइफ भी बताए थे। ये अमल तुम्हें रात की तन्हाई में करने हैं, बगैर किसी से बातचीत किए हुए। अब उसने ये बात भी कह दी, जो मेरे पेट के अंदर है, मैं उसे अब इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। मैं उसकी माँ हूँ। सांप ने उसकी बात सुन ली जो काले इल्म के जरिए उसके अंदर था। बस वो बढ़ना शुरू हो गया। वहाँ पर उसने एक दाई से भी बात कर रखी थी। मेरे पेट से कोई इंसानी बच्चा नहीं बल्कि एक सांप आएगा, तुम्हें डरना नहीं है। दाई ने उसकी बात मान ली। एक वक्त आया कि उसने सांप को जन्म दिया, क्योंकि वो इस अमल को करने के लिए वजीफा कर रही थी और चिल्ला काट रही थी। इस तरीके से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया और अल्लाह ताला की करनी के उसके साथ साथ उसने एक जिंदा बच्चे को भी जन्म दिया, जिसका रंग बिल्कुल नीला था। वो लड़का अपनी पैदाइश से कुछ देर बाद मर गया। दुख तो बहुत हुआ कि एक माँ को 3 बेटियां और एक बेटा इस दुनिया से चला गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन वो सांप को अपने सामने देखकर सच में हैरान थी कि मैंने इस खौफनाक काले नाग को अपने अंदर पाला है। अब ये निकल गया है, अल्लाह पाक मेरी मंजिल को आसान कर देगा। उसके ठीक 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उसको एक सेहतमंद लड़के से नवाज दिया। वो लड़का बिल्कुल ठीक था। उसके बाद अल्लाह ताला ने उसे 2 बेटे और अता किए। काले इल्म का असर अब खत्म हो चुका था। एक दिन वो फकीर उसके दरवाजे पर आया। औरत दौड़ती हुई दरवाजे पर आई। बाबा, क्या बात है? कोई ऐसी खबर तो नहीं सुनाने वाले मैं फिर से टूट जाऊं? अब तो मेरे बेटे भी हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि वो सेहतमंद है। मैं रोजाना लंबी जिंदगी की दुआ करती हूँ कि कोई भी मेरे बच्चों को नुकसान न पहुँचाए। फकीर ने कहा, बेटी, मैं इस बार कोई बुरी खबर नहीं सुनाने वाला हूँ, बल्कि मैं तो ये खुशखबरी सुनाने वाला हूँ
کہ وہ ہندو عامل جس نے اس لڑکے کو عمل سکھایا تھا اس کو کسی کالے سانپ نے ڈس لیا ہے، کہ وہ اس جنگل میں پھر سے کالا جادو کر رہا تھا اور وہ پھر سے تمہارے بچوں کو چھین رہا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کی کرنی کے کالا ناگ کہیں سے آ گیا اور اس نے اسے ڈس لیا۔ وہ لڑکا جو تمہارا عاشق تھا وہ پھر سے اس سے عمل کروا رہا تھا، اس کو بھی اسی کالے سانپ نے ڈس لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا، جو تمہارے دشمن تھے تمہیں ان سے دور کر دیا گیا ہے، اب تم ہنسی خوشی زندگی گزار سکتی ہو۔ اللہ پاک تمہارے بیٹے کو لمبی زندگی دے گا، تمہاری جائیداد کا بارش بنائے گا۔ وہ نیک پاکیزہ عورت اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔